हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरमिता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So welcome to what is going to be the final leg of your journey of Bhagavad Gita. वैसे भगवत गीता हम आजीवन अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहले पड़ाव पे आखिरी जो सीढ़ी है उस स्तर पे हम सब आ गए हैं। 18वां अध्याय को आज से हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। स्टार्ट स्टडीइंग द 18th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। वैसे देखा जाए सारे ज्ञान का निचोड़ वेदों में है। वेदों का सारे ज्ञान का निचोड़ 4 वेदों में संग्रहित कर चुके हैं वेदव्यास जी, और उसको विभाजन कर दिया उन्होंने। 4 वेदों का ज्ञान के सारांश को भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णा ने 700 श्लोक में हमें समझा दिया या समझाने वाले हैं। इन द नेक्स्ट एंड अनदर 78 more श्लोकास। तो the entire knowledge, all the knowledge of the world has been summarized in the Vedas. And in the Vedas, which include the Puranas, Itihasas, Upanishads, 4 Vedas captures the essence of all the Vedic knowledge. 4 Vedos and the summary of the 4 Vedas is beautifully summarized, is beautifully captured by Bhagavan Shri Krishna in Bhagavad Gita within 700 श्लोकास। 700 श्लोक में पूरे वेद ज्ञान का भंडार हमारे लिए भगवान ने प्रस्तुत कर दिया है। So Lord is presenting the treasure of Vedic knowledge within 700 shlokas of the 18 chapters of Bhagavad Gita. So this is miraculous, ये अद्भुत है। उस 18 अध्याय भगवत गीता का सारांश 18वें अध्याय में भगवान ने समराइज कर दिया, संक्षिप्त में दे दिया। सो द समरी ऑफ द 18 chapters has been given in the 18th chapter of Bhagavad Gita. So all knowledge, Vedic knowledge, 4 Vedas, Bhagavad Gita, 18 chapters, 18th chapter. So 18th chapter is the conclusion, and virtually Krishna is summarizing the entire Bhagavad Gita. Whatever he spoke till now, till 17th chapter, the end, Krishna is going to revise again. He's going to give it in a nutshell. So if you listen to this one chapter attentively, you get the entire knowledge of Bhagavad Gita, which is the summary of the entire knowledge of the 4 Vedas, which is the essence of all the Vedas, which is the cream of all the knowledge of the world, all the tangibly useful knowledge of the world. और उस पे खास तौर पे को सेकेंड चैप्टर भगवद गीता ऑल्सो कृष्णा
summarizes and says what he is going to tell from now on. तीसरे अध्याय से वो क्या बोलने वाले हैं। तो उन्होंने दूसरे अध्याय में मतलब एक समरी वर्षन, समरी भगवत गीता हमको पढ़ा दिया था, और 18वें अध्याय में वो फिर क्या बोलते हैं, समराइज करने वाले। सो कृष्णा इज गोइंग टू री-समराइज all the 17 chapters, all the chapters of Bhagavad Gita in the 18th chapter. And that 18th chapter is going to be summarized today. आज हम उस 18वें अध्याय का संक्षिप्त विवरण एक सेशन में सुनने वाले हैं। So if you listen to this one session attentively, you will understand the 18th chapter, which is the summary of Bhagavad Gita, which is the essence of the four Vedas, which is the summary of the Vedic knowledge, which is the treasure, you can say that, which is the vital grasped knowledge of all the available knowledge, useful knowledge in the world. So ध्यान से इस अध्याय को आप सुनिए। All translations and purports by His Divine Grace, Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So we will move on. Today some people will not be able to join our session because there are all the people who are already into Charanashraya session, and today they have a senior devotee session. So they will not be able to join. But I had to continue and do this class for the benefit of all the others who are going to attend today. So ध्यान से सुनिए इस next 30 minutes class. So the 18th chapter is called conclusion. That is the perfection of renunciation. इस अध्याय का नाम है the perfection of renunciation. You can say that योग का परिपूर्णता इसमें आएगा, और जो हम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम त्याग का जो संक्षिप्त विवरण है, परिपूर्णता है, वो इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान ने हमें प्रस्तुत किया है। सो द होल चैप्टर is to emphasize the goal of surrender to Krishna, and the essence of all the previous chapters is taught in this final chapter. तो 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने के लिए भक्त को प्रोत्साहन देते हैं भगवान, और बाकी सारे अध्यायों का निचोड़ अभी भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में देने वाले हैं, और वो अध्याय के पूरे निचोड़ हम इस एक सेशन में करने वाले। सो कृष्णा बिगिंस दिस समरी। तो कृष्णा अपने जो संक्षिप्त विवरण 18वें अध्याय में प्रारंभ करेंगे। तो पहले वो हमें सिखाएंगे कैसे अर्जुना को वो समझा रहे कि सारे फल की इच्छा त्याग दो, और केवल आप अपने कार्य पे ध्यान दो, कार्य को आप छोड़ के मत जाओ। अर्जुना क्या बोल रहा है, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। कृष्णा से नो नो, यू कैन नॉट डू दैट। आपको आपका सेवा करना है, आपको आपका वो कर्तव्य है वो निभाना है। यू हैव टू डू योर ड्यूटी, बट बी ड्यूटीफुल एंड बी डिटैच्ड इन योर वर्क, देन इट विल नॉट ब्रिंग यू एनी रिएक्शन। ठीक है, अर्जुना बोल रहा है मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा, मुझे पाप लगेगा, इनके रक्त से लेप लगा हुआ राज्य लेके मैं क्या भोगूंगा, मेरे ही मित्र है, मेरे ही पुत्र है, मेरे पौत्र है, मेरे ही पिता समान व्यक्ति है उस तरफ, और मेरी तरफ से भी लोग मारे जाएंगे, तो ये मैं नहीं चाहता। केवल हमें राज्य की लोभ से ये करना पड़ रहा है, तो ये इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। कृष्णा क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, फल की अपेक्षा मत करो, अपना कार्य करो, डू योर ड्यूटी।
This is a lesson for all of us. Do your duty. Leave the results to Krishna. He knows better. What do you know what to ask? A simple question I'm asking you. मैं आपसे एक सरल सवाल पूछ रहा हूँ. क्या आपको पता है आपको क्या मांगना है? क्या आपको पता है आप किस चीज से आप खुश रह जाएंगे? कौन सी चीज आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा? किसके आने से या किसके जाने से आपका मानव जन्म का परिपूर्णता आप पाएंगे? क्या आप जानते हो? डज द स्मॉल चाइल्ड नो व्हाट इज गुड फॉर हिम? क्या एक छोटा शिशु जानता है उसके लिए क्या अच्छा है? क्या वो शिशु माँ को बोल रहा है मुझे सेरेलैक खिलाओ, वो अच्छा है? उसको ज्ञान भी नहीं है कि उसको क्या खाना है. माँ देखभाल कर रही है, पिताजी सब प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मदर इज टेकिंग केयर and father is providing everything. So if the child relies on father and mother, that is the best thing it can do rather than give its own opinions. फिर ये 18वें अध्याय 11 विभाग में 11 विभाजन हम कर सकते हैं. We can divide it into 11 parts. Or in all the 11 parts, few chapters of previous chapters of Bhagavad Gita is going on getting covered. तो पूर्व हमने जो किया था बाकी अध्याय उसके छोटे छोटे टुकड़े में हम पूरे 18 अध्याय को विभाजन कर सकते हैं. तो पहला सेक्शन है श्लोका 1 से श्लोका 12 तक, 18.1 to 18.12. In this, Krishna gives the summary of chapters 1 to 6. 12 श्लोक में आपने भगवत गीता का पहले 6 अध्याय का संक्षिप्त ज्ञान आपको प्राप्त होगा. इन द फर्स्ट 12 श्लोकास, मतलब द क्रीम ऑफ क्रीम्स कृष्णा इज गोइंग टू मेक इट. सो ये जो विभाग है कर्म का विभाग है. सो द सेक्शन ऑफ कर्मा. सो वी आल्सो स्टडीड दैट द फर्स्ट 6 चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता इज कंसर्न विद कर्म योगा. Chapter 7 to chapter 12 is concerned with Bhakti Yoga per se. Chapter 13 to chapter 18 is concerned with Jnana Yoga, with 18 chapter acting as the essence of all the chapters. तो अब अध्याय 1 से अध्याय 6 कर्म योग का विभाग है. अध्याय 7 से 12 ज्ञान योग का विभाग है. अध्याय 13 से 18 अध्याय 7 से 12 भक्ति योग का विभाग है. और अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग का विभाग है. और खास तौर पे 18वां अध्याय सारे पूर्व अध्याय 1 से 17 तक उसका निचोड़ है. सो इसमें हम क्या सीखेंगे? अगेन समरी ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द 12 श्लोकास, व्हिच इज द समरी ऑफ 6 चैप्टर्स. सो ए ट्रू सन्यासी डज नॉट रिनाउंस हिज एक्टिविटीज. सच्चा जो सन्यासी है अपना कर्तव्य को वो नहीं छोड़ेगा. But he is detached from their fruits. लेकिन कर्म का जो प्रतिफल है उसके लिए वो आशा नहीं करेगा. And Krishna concludes that the renounced order of life, sannyasa, and renunciation of the fruits of action are the same. और कृष्णा यही बोल रहे हैं संन्यास ग्रहण करना या कार्य करते हुए उसके प्रतिफल को कृष्णा के ऊपर छोड़ देना, त्याग कर देना. ये त्याग है. त्याग मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया. त्याग मतलब ये है कि मैंने अर्पित किया कृष्णा को. आई ऑफर्ड इट टू कृष्ण. दैट इज व्हाट त्याग मीन्स. तो और फिर इस 12 श्लोक में कृष्णा हमें समझाएंगे वर्क परफॉर्म्ड इन दिस वे इज रिनंसिएशन इन द मोड ऑफ गुडनेस. और ऐसे कार्य करने से प्रतिफल की अपेक्षा न करते हुए कार्य करना सत्व गुण में कार्य करने के समान है या सत्व गुण में काम करने का उदाहरण है. विच इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पिरिचुअलिटी. तो अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें सत्व गुण प्राप्त करना होगा. रजोगुण तमोगुण जो बहुतेक हम फंसे हुए हैं इसमें रह के आध्यात्मिक प्रगति हम नहीं कर सकते. कृष्णा की प्राप्ति नहीं होगा. सत्व गुण में कम से कम सत्व गुण में हमें आना चाहिए और वहां से शुद्ध सत्व गुण में प्रवेश करना.
दूसरे सेक्शन दी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण keep your audio on mute. Please keep your audio on mute because this will be basically a one-way class. So section 2, 13, श्लोका नंबर 13 to श्लोका नंबर 18, 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक 18वें अध्याय का इट समराइजेस चैप्टर 13 to 17. तो जब भक्ति होगा बात नहीं किया कृष्ण भगवान ने, तो क्योंकि 7 से 12 क्या था, भक्ति योग था। भक्ति योग अभी उन्होंने प्रारंभ नहीं किया 18वें अध्याय में। क्या करेंगे पहले, वो 13वें श्लोक से 18वें श्लोक तक हमें ज्ञान योग के बारे में सिखाएंगे। जो ज्ञान योग कौन सा सेक्शन है, चैप्टर 13 to chapter 17 और इवन 18 पार्ट्स ऑफ इट। 13वें अध्याय से 17वें अध्याय तक जो ज्ञान जो अध्याय है उसका निचोड़ ज्ञान योग, ये 7 श्लोक में कृष्णा हमें सिखाने वाले हैं। सो कृष्णा हियर टॉक्स अबाउट वेदांता and then he analyzes activities as comprised of 5 factors. तो यहाँ पे वेदांत दर्शन हमें कराएंगे भगवान श्री कृष्णा इस 7 श्लोक में। फिर वो संख्या करने वाले हैं कि कैसे 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे जीवन में हमारे कार्यों के ऊपर प्रभाव करता। तो दिस इज टू हेल्प अस परफॉर्म एक्टिविटीज विदाउट बिकमिंग बाउंड। तो ये हम जान के अगर कोई कार्य करेंगे तो बंधन में फंसेंगे नहीं, भौतिक बंधन में हम फंसेंगे नहीं। फिर यहाँ पे हम सीखेंगे द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस फैक्टर्स इज सुपर सोल। 5 ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे सक्सेस या फेलियर को डिटरमाइन करता है। जीत या हार का जो फैसला है 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करता है। और उसमें से सबसे मुख्य जो भाग है वो है परमात्मा, सुपर सोल। तो सुपर सोल विल मेनली डिसाइड what is going to be what has to succeed in our life and what can be a failure in our life, and in both the cases Krishna only wants good for us. जीत या हार दोनों में कृष्णा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और हमारे भलाई के लिए। फिर जो मैंने बोला 11 हम विभाग कर सकते हैं, तो इस 11 विभागों में तीसरा विभाग से 8वें विभाग तक तो कृष्णा टॉक्स अबाउट योगा लैडर, योग का सीढ़ी, इसके बारे में धीरे धीरे बात करते जाएंगे। So it expands to many chapters and that is summarized in between section 3 to section 8. तो section 3 क्या है, section 3 फिर से कर्म के बारे में कृष्णा प्रारंभ करेंगे बात करना। 19वें श्लोक से 40वें श्लोक तक, from 19th श्लोका to the 40th श्लोका, Krishna talks about karma and modes of how modes control all the activities। कैसे जो त्रिगुण है सत्व रजा और तमा, ये सारे हमारे कार्य को निरूपित करता है। So one's work according to the 5 factors mentioned is dictated by the 3 modes। कैसे कोई कार्य कर रहा है उसका त्रिगुण के कितने परसेंटेज है उसमें, उस पर आधारित है। Whether it's going to do work in goodness, work in passion, work in ignorance is dependent on which गुणा, कौन सा स्वभाव उसके अंदर है। फिर उसमें क्या भगवान इस ऑलमोस्ट 21 श्लोक में भगवान हमें एक जर्नी में लेके जाते हैं। टेक्स अस ऑन ए जर्नी। ही कवर्स व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज एक्शन, he covers what is performance of action, what is one's understanding of each thing, what is the basis of understanding, what is one's determination, what is one's happiness.
तो इस 21 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें एक यात्रा में लेके जा रहे हैं, जिसमें वो समझाएंगे हमें कि ज्ञान क्या है, कार्य क्या है, कार्य को कैसे करना है, और कोई चीज हमें कैसे समझ में आता है, क्या हमारा मतलब पोजीशन है, व्हाट इज आवर पोजीशन इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और हमारा धृति और डिटर्मिनेशन। कृष्णा टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेशंस, एंड कृष्णा टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस, कैसे हम सुखी रह सकते हैं। तो फ्रॉम 19th श्लोका टू 40th श्लोका he covers like this. So all activities within the universe are thus controlled by the three modes. So जो इस भौतिक विश्व में, भौतिक जो जगत है, सारे जो कार्य चल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं, जो कोई और कर रहा है इस जगत में, वो त्रिगुणों पे आधारित है। और प्रभु हम तो भक्त है, हम तो त्रिगुणातीत हैं, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी मार्ग में है, लेकिन अभी भी त्रिगुण के अधीन में है। इसलिए जितना हो सके हमें भक्तों के संग में रहना है। Prabhupada gives the example of iron rod in fire. हम एक लोहे के सलाखे की तरह है, जंग लग सकता है हमें, ऐसे हमारे धातु है, लेकिन आग में अगर लोहे लोहे के सलाखे को रखेंगे काफी देर, तो लोहे के सलाखे गर्म होके लाल हो जाएगा। तो उस लोहे सलाखे को आप निकाल के कहीं भी रखेंगे, उसमें आग लगेगी, तो आग की वो कार्य करना प्रारंभ करेगा। है लोहा, लेकिन अभी आग जैसे बन गया, क्योंकि आग के संपर्क में था। तो ठीक वैसे कि भक्तों के संपर्क में रह के भक्तों का कुछ गुण हमारे अंदर आ सकता है। गोपाल जी के शरण में रह के उनके आशीर्वाद से हम शुद्ध सत्व में प्रवेश कर सकते हैं, भक्ति कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भगवान का। दिस इज कॉजलेस मर्सी ऑफ गुरु, भगवान के असीम कृपा से हम ये पथ पे है, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है, वरना हमारा कोई भी ऐसा क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी वजह से हम भक्ति कर रहे हैं। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रभुपाद के शरण में जा चुके हैं। प्रभुपाद की शरण में क्यों गए? चैत्य गुरु कृष्ण भगवान ने हमें उनके पास हमें उनके पास लेके गया। कृष्णा took us in the form of super soul, he guided us, took us to the external guru, and this external guru Srila Prabhupada is now going to take us to Krishna, और ये प्रभुपाद जी हमें कृष्ण की ओर लेके जाएंगे। फिर चौथे सेक्शन में कृष्णा टॉक्स अबाउट ये कौन से श्लोक से कौन से श्लोक जाता है? 41वें श्लोक से 48वें श्लोक तक, 8 श्लोकास। इन दिस 8 श्लोकास कृष्णा टॉक्स अबाउट हाउ वी कैन गो फ्रॉम सकाम योग टू निष्काम कर्म योग। तो काम की इच्छा करते हुए कृष्ण भक्ति प्रारंभ करेंगे, फिर निष्काम कर्म तक हम पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे सारे कुछ हम भगवान को अर्पण करना प्रारंभ करेंगे, ये गुरु हमें सिखाएंगे। सो कृष्णा टीचर्स हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑक्यूपेशनल रिएक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल वर्क, नॉट फ्री फ्रॉम वर्क, फ्री फ्रॉम रिएक्शन ऑफ ऑक्यूपेशनल वर्क। जैसे हम सब अभी हम एक स्वधर्म कर रहे हैं, एक पिता है, हम पुत्र हैं, हम नागरिक है, और इस राष्ट्र के मतलब एक सिटीजन है, हम विश्व का एक सिटीजन है हम, तो हमारा कुछ कर्तव्य है और हमारा हमारा कुछ राइट्स हैं, उसके आधार पे स्वधर्म हम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो कैसे हम इस कार्य करते हुए भक्ति कर सकते हैं, तो ये इस अध्याय इस भाग में हमें सीखने को मिलेगा। ऑल वर्क इज कंट्रोल्ड बाय द मोड्स, येट वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ वर्क। त्रिगुणों के आधारित पे कार्य है, लेकिन क्योंकि मार्गदर्शन गुरु का है, कृष्ण की ओर हम जा रहे हैं उनके मार्गदर्शन से, तो कर्म का कोई क्या बोलते हैं, हमें रिएक्शंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का सृष्टि हमारे वैष्णव मतलब हमारे वैदिक समाज में ये प्रतीत था। दिस वॉज व्हाट वाज बीइंग प्रोपगेटेड इन आवर वैदिक कल्चर। फिर यहां से कृष्णा हमें निष्काम योग से भी आगे लेके जाएंगे।
निष्काम योग से मोक्ष तक। कौन सा मोक्ष? भगवान की सेवा। मोक्ष का भी 5 स्तर है। तो पहले 4 स्तर, वो भी इट इज अ डेंजरस मोक्ष, वो भी मतलब एक अपायकारी मोक्ष है, क्योंकि कभी भी हम उस मोक्ष की स्थिति से वापस भौतिक स्थिति में आ सकते हैं। तो टॉप मोस्ट ऑफ दैट मोक्षा इज टू एंटर द स्टेज ऑफ बिकमिंग प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड एंगेज इन हिज डिवोशनल सर्विस। तो अभी हम शुद्ध और भक्त नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्त के साथ है, प्रभुपाद जी के साथ है। हम लोहे के सलाखे हैं, प्रभुपाद जी अग्नि है। और जो हम कार्य क्या कर रहे हैं, भक्त क्या कर रहे हैं, आपको पकड़ के उस अग्नि में रख रहे हैं। तो आपको लगता है तप है, क्या प्रभु जी कर रहे हैं, अब जब देखो 16 माला किया क्या, सेवा किया क्या, आपने पढ़ा क्या, कल इंटरव्यू है, कल एग्जाम है, पढ़ो, हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो आपको लगता है आपके प्रीचर आपको आपको आग में डाल दिया। लेकिन आपको आग में डाल दिया मतलब क्या है, व्हाट इज द लॉजिक? द डिवोटी इज पुटिंग यू इन एसोसिएशन विद प्रभुपाद एंड प्रभुपाद इज फुल ऑफ एनर्जी। तो वो ताप तो हमें लगेगा, लेकिन उसके संपर्क में रहने से तो उनके सारे जो अच्छे गुण हैं वो हमारे अंदर भी प्रवेश करेंगे। By being with devotees, we can become devotees. At least we can start behaving like devotees. This is the whole purpose of association. तो 5वें सेक्शन में कृष्णा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में बात करते हैं। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या था? 7वें अध्याय से प्रारंभ करते भगवान, और 9वें अध्याय में he talks about राज विद्या, राजगुह्यम. He talks about supreme secret. So and he talks about reaction from वर्क, फिर ज्ञान योग के बारे में, फिर ब्रह्मन के स्तर पे जाना, फिर शुद्ध भक्त के स्तर पे जाना। तो ये एक यात्रा में भगवान हमें लेके जाएंगे। 49वें श्लोक, 49th श्लोका तो 55th श्लोका। तो ये जो 6 श्लोक है, 6-7 श्लोक है, इससे भगवान हमें कैसे हम निष्काम योग से, कर्म योग से परम मोक्ष, परम धाम पाने का लक्ष्य तक हम जा सकते हैं। सो धीरे धीरे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। फिर 56वें श्लोक 18.56 टू 18.60, तो इस 5 श्लोक में 56, 57, 58, 59, 60, 5 श्लोकस। तो इन 5 श्लोक में जो छठे सेक्शन है, कृष्णा हमें कैसे शुद्ध भक्ति में कार्य करना है इसके बारे में बात करते हैं। हाउ शुड वन वर्क, हाउ शुड वन सर्व हिम इन प्योर डिवोशनल सर्विस, दिस कृष्णा टॉक्स अबाउट। सो एंड कृष्णा टॉक्स अबाउट हाउ वन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस शुड वर्क अंडर द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड। कैसे कोई भक्ति में है तो कैसे भगवान के निर्देशन से उसको जीवन चलाना है। फुल्ली डिपेंडिंग ऑन हिम, पूरे भगवान के ऊपर निर्भर होते हुए, गोप्तृत्वे वारणम, मतलब पूर्ण पूर्ण तरीके से अवलंबित होना कृष्ण पे। टू बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, टू बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत स्थिति में भावित होके हमें रहना। कैसे रहना है ये भगवान श्री कृष्ण हमें इस 5 श्लोक में हमें सिखाएंगे। तो ये पढ़ने के बाद हम त्रिगुणों से परे होने का उपाय हमें पता चलेगा। हाउ वी कैन बी गोइंग ओवर द 3 गुणास। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। कृष्णा इज टेलिंग विथ ओवरकम द 3 मोड्स, गो ओवर द 3 मोड्स। तो इस सेक्शन में कृष्णा हमें सिखाएंगे कि कैसे हो सकता है। फिर 7वें सेक्शन में 61 to 63 4 श्लोक, 3 श्लोक में कृष्णा हमें सिखाते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परमम गुह्यम, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है ये सिखाते हैं। तो धीरे धीरे हमें कृष्णा अपने चरणों में आश्रय देने वाले हैं। तो इन दिस सेक्शन कृष्णा टीचर्स हाउ टू सरेंडर टू परमात्मा एंड
Krishna gives about the techniques of how to do it, or uh, the tattva, कैसे उस भगवान की शरण में हम जा सकते हैं, उस तत्व के बारे में कृष्णा बात करते हैं। फिर 8वें सेक्शन, तो यहाँ तक फ्रॉम 3rd सेक्शन टू 8वें सेक्शन योगा लैडर इज गोइंग ऑन। तो 64, 65, 66 called as the cream of all creams now। तो 18वें अध्याय के क्रीम आज हम कर रहे हैं, और उसमें 3 श्लोक क्रीम ऑफ क्रीम्स है। तो द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल, how to become a pure devotee of Krishna, ends with 66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उससे पहले कृष्णा बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। He tells the technique and he tells what you should do with that. Fully surrender to Krishna, always think of Krishna, हमेशा कृष्णा की ध्यान करो। फिर बिकम कृष्णा डिवोटी, कृष्णा की भक्त बनो, वर्शिप कृष्णा, कृष्णा की पूजा करो, ऑफर होमेज टू कृष्णा, माम नमस्कुरु। तो एंड दस कम टू कृष्णा माम एवैश्यसि सत्यम ते। कृष्णा 18वें अध्याय में 65th श्लोका में कैटेगोरिकली इज टेलिंग that if you do these 4 things, 4 ये चीज करने से, अन्मना भव मद भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु माम एवैश्यसि सत्यम ते, 100% you will come back to me। ये देखिए सबसे बड़ा गारंटी है, हमारा कोई इंश्योरेंस भी गारंटी नहीं देगा इतना, कोई ना कोई फाइन प्रिंट रखेगा हमें फंसाने के लिए। कृष्णा ऐसे नहीं बोल रहे, ये 4 चीज करो मेरे पास आ सकते हो, मेरे पास आने की मैं गारंटी देता हूँ। प्रभुपाद इज ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डूइंग, जो भी हम सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद आश्रय की ये कोर्स कर रहे हैं, भगवत गीता का क्लास सुन रहे हैं, मंदिर में आके दर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये 4 चीज करने के लिए। क्यों ये 4 की चीज करना है? क्योंकि भगवान की शरण में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि भगवान ने खुद आदेश दिया है। क्या होगा वो करने से? तो कृष्णा इज टेलिंग तुम हम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप को हर लूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय ऑल योर पापा, ऑल योर सिंफुल एक्टिविटीज। मां सोचा, सोचो मत ज्यादा इसके ऊपर, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, डोंट वरी चैंट हरी। दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग कि चिंता मत करो, बस मेरा चिंतन करो, हरि भजन करो। ये कृष्णा हमें सिखाएंगे, और वो कैसे करना है? संपूर्ण तरीके से कृष्णा के शरण में जाने के उपरांत होगा। तो एक होने से क्या होगा? लाइक ही विल रिमूव ऑल सिंफुल रिएक्शंस, येषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा। फिर उसके पाप के सारे जो अकाउंट बंद हो जाएगा, जो पुण्य कार्य जो रहेगा, जो भक्ति कार्य रहेगा, उसी से हमें कृष्णा प्राप्त होगा। पहले सारे पाप को मिटाना है, रिएक्शंस वी शुड, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इफ वी सरेंडर टू कृष्ण। तो दोज हु स्टडी भगवद गीता, व्हाट हैपेंस सेक्शन 9 में कृष्णा समझाएंगे 67 to 71 प्रीचिंग एंड स्टडीइंग भगवद गीता। अच्छा आपने तो आप भक्त बन गए, चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो टेलिंग देन भारत भूमि ले जन्म पहले यार, जन्म सार्थक करी पहले, फर्स्ट यू सरेंडर टू कृष्ण, देन करो परो उपकार। तो दैट चैतन्य महाप्रभु चलेंगे बाकी लोगों के लिए भी कुछ करो। क्या करना है? अन्नदान, वस्त्रदान, ये दान, नेत्रदान, वो सब नहीं, वो ठीक है करने से, वो भी ठीक है, पर सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता भक्ति का ज्ञान किसी को देना। सो दिस इज प्रीचिंग। व्हाट इज प्रीचिंग? प्रीचिंग इज टू टेक somebody towards Krishna, that is preaching, and to do everything that is required for that. So preaching and studying Bhagavad Gita। 66 के बाद कृष्णा समझाने वाले कौन उनको बहुत प्रिय लगते हैं, who is very dear to him, वो हमें समझाते हैं। One who speaks about this Bhagavad Gita to devotees, who discusses with them, who makes the other people devotees, very very dear to me। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं आप कैसे भक्त हो, ये भक्त हो कि नहीं, इसी से हमें पता चलेगा आपने कितने लोगों को प्रभुपाद जी के शरण में आप लेके आए, आपके गुरु के शरण में आप लेके आए, कितने लोगों को आप भक्त बनाने के साधन बने, यही आपका मापदंड है। The more people you are bought in the right way, not in a
spirit of competition, dirty rat race, no. In a spirit of bringing them back to Godhead, bringing them back to their original father, Krishna. That should be the spirit. So this can be done by a non-envious person. So भक्त हमेशा तो निर्मात्सर्य, दिल बी नॉट एनवियस ऑफ एनिमल, क्योंकि एनवी जब आ जाएगा फिर हम सोचेंगे मैं मुझे बड़ा भक्त बनना है, इसको बनाऊंगा तो ये मुझसे बड़ा भक्त बन जाएगा। नहीं बाबा, रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसा कोई भक्त बन ही नहीं सकता। तो दूसरों को भक्त बनने का जो अवकाश देता है, जो एटलीस्ट गुरु के शरण में लेके आता है लोगों को, वही कृष्णा को अत्यंत प्रिय है। सो दोज हु स्टडी भगवद गीता, दे वर्शिप कृष्णा विद देयर इंटेलिजेंस। भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, वो भगवान श्री कृष्णा का पूजा कैसे कर रहे हैं? बुद्धि, बुद्धि होगा, जो भक्ति होगा इज आल्सो कॉल्ड बुद्धि होगा। एंड फेथफुल नॉन एनवियस हियरर्स बिकम्स फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। जो भी भगवद गीता का श्रवण श्रद्धा से करेंगे वो सारे पाप से विमुक्त हो जाएंगे, कृष्ण का भक्त बन जाएंगे, केवल कृष्ण कथा सुनते सुनते। फिर सेक्शन 10 में अर्जुना इज फॉर्मली फिक्स्ड। तो कृष्णा ने सब समझा दिया, कृष्णा ने बोला समझ में आ गया, अर्जुन ने उत्तर दिया हाँ मुझे सब समझ में आ गया, मुझे अभी पता है मुझे क्या करना है। सो आफ्टर हियरिंग भगवद गीता 72 and 73, 18.72, 18.73, Arjuna is telling that yes, I have understood everything now. Sarvameta Dhrutam Manye, Yanmam Vadasi Keshava. So I will do what you say now. तो करिष्ये वचनम तवा, आपने जो भी मुझे उपदेश दिया वो मैं करूंगा। फिर अंत में लास्ट 4 श्लोकास 74, 75, 76, 77, लास्ट 3 श्लोकास, so many of the shlokas, 5 shlokas. संजय is speaking. संजय क्या बात कर रहे हैं? सेक्शन 11 में, कंक्लूडिंग सेक्शन में संजय घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं संजय? संजय घोषणा कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण का अद्भुत रूप उन्होंने देखा, कैसे ये अद्भुत संवाद कृष्ण और अर्जुना का उन्होंने सुना, और कैसे कृष्ण के साथ जो भक्त रहता है, कृष्ण और भक्त जब साथ रहते हैं वहां पे विजय होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। तो ये बोल के संजय 18वें अध्याय को और भगवद गीता को विराम देते हैं। तो संजय अंत में पहला प्रश्न क्या था धृतराष्ट्र का? क्या किया मेरे पुत्र ने और पांडव के पुत्र ने क्या किया? तो पूरा वो समझाए। और अभी संजय ने आखिरी श्लोक में धृतराष्ट्र को बोला, he told Dhritarashtra, your sons are going to be defeated. Arjuna and Pandavas are going to win because Krishna is there with them. That means goddess of fortune is there with them. That is, Krishna is always going to stand with the righteous people, and where Krishna is there, there is victory. ये ध्रुवा नीति, this is my ultimate understanding that Krishna is the master of all mystics. कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण बात कर, संजय बात करके इस अध्याय को समाप्त करते हैं और भगवद गीता को विराम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे